बहुत पब्लिक को अभी तक ये ही नहीं पता है कि डिफरेंस क्या है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में। तो ये दो कारण से होती है, या तो इंसुलिन नहीं होगा बॉडी में पैदा, या इंसुलिन पैदा होता है लेकिन काम नहीं कर पाता है। तो जब वो पैदा नहीं होता है उसे बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज और इंसुलिन डेफिशिएंट डायबिटीज मेलाइटिस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और जब इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में रहता है लेकिन काम कर नहीं पाता है तो बॉडी उसको ओवरटेक करने के लिए और ज्यादा इंसुलिन पैदा करती है, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसको हम सादा भाषा में समझाएंगे तो आपकी चाबी नहीं है तो आप ताला कहां से खोलोगे, लेकिन चाबी है लेकिन ताले में फिट नहीं हो रही है। तो आप कई प्रकार की चाबियां लगाते हो ना, तो जब आप मल्टीपल चाबियां लगाते हो तो उसे बोलते हैं टाइप 2, जब चाबी नहीं है तो उसे बोलते हैं टाइप 1। Most of the times when I see my patients, if the patient is little, fat, he'll come and say, I want to lose 10 kgs in 3 months. That's a standard dialogue we hear. And अगर पतला इंसान है तो बोलेगा मुझे weight gain करना है, but none of them are aware कि उनका fat percentage कितना है. Burning fat and burning calorie is very important. Like very rightly said, we can burn a lot of calories when we are sort of doing treadmill or we are running or we are swimming. But we should burn more fat when we are not doing these activities. Exactly. When we are sedentary. Exactly. When that is possible, see, that is possible if you have a lot of muscle mass. If your muscles are highly toned and developed, they keep burning calories throughout the day. And that burning is a huge amount. If your muscle mass is not there, you won't burn. So first important thing is to develop muscle mass. जब हम aerobics करते हैं, जब हम डांस करते हैं, जब हम भागते हैं, जब हम दौड़ते हैं, we are not developing muscle mass. No. We are burning calories, and what is the advantage? We are strengthening our heart. These are cardiac exercises. If you do it gradedly, you will make your heart very strong. So they are very good. But what is more important today by medical literature is muscle building exercises, जिसके लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ता, which is resistance and strength training, which is very important. Absolutely. Healthy morning friends, welcome back to Aura Health Hub. Today we are back with one more amazing episode. So we are going to talk about a topic which is very common nowadays, that is type 2 diabetes. Out of 10 patients we see, 7 are suffering from type 2 diabetes. To talk more about this topic, to create more awareness on type 2 diabetes, we have an amazing personality with us today, Dr. Alok Modi, a well-known diabetologist from Mumbai. Welcome sir, welcome to Aura Health Hub. Thank you for accepting our invite and being here today. So I would like to, introduce yourself and talk more about yourself, about your academics, about the fellowships you have done, and if you have ever been into research. Well, good morning. A very warm thanks and welcome to this clinic, to you as well as all the respected members of Aura Health. Now, this is a very important topic that you've touched upon, and we, through various organizations, being a member of a prestigious organization like RSSDI, American College of Physicians, are working very hard as a responsible member of medical fraternity, because this is a lifestyle disease, it's a reversible disease, and we would like people to get free of diabetes as soon as possible, as early as possible, and remain free permanently if possible, because it totally depends a lot on their lifestyle. Right. Talking about myself, I'm grateful to you that you have given me this opportunity. So I hail from Thane, Mumbai. I'm attached to Jupiter Hospital. I'm attached to Kevalya Hospital. And I'm also running Dr. Alok Modi's Diabetes Center. Regarding my qualifications, I've done my MD way back in 1993 from St. G.S. Medical College and KM Hospital. And by God's grace and the blessings of my parents, I had topped in the university at that time. Subsequently, I have been a fellow of American College of Physicians, Diabetes India, a fellow of Indian Academy of Medicine. I am also a fellow of American College of Physicians India chapter. And I'm doing a lot of work in AI for healthcare today. And again, I'm fortunate that I have been certified by the American Board of AI, Artificial Intelligence for Healthcare Providers. I'm also certified by Massachusetts University for Artificial Intelligence for Healthcare Providers. Thanks to the blessings of my seniors, well wishes of my colleagues, a lot of help from my wife. She is a cancer surgeon. My family support and all my seniors and my teachers and my parents' blessings. I've been fortunate to get I have been given some accolades and prizes, and I've been awarded as the best research scientist in 2023. Wow, awesome. Top diabetologist in India, in Mumbai actually.
the top 10 diabetologists by the Indian Diabetes Federation, and multiple organizations, and we keep working. I consider myself as a worker for the benefit of Society at General for Diabetes and Internal Medicine. Yeah. And I think, like me, there are many other celebrities, doctors. I wouldn't consider myself a celebrity, but I have a lot of friends who I think are celebrities and who are path-breaking torch creators, who are doing fantastic work in diabetes and are educating people. And a lot of work is being done, and I'm sure we would be able to reverse this malady of diabetes in India. It's a sweet disease, but the proportions are definitely not sweet. Right. So that's a little something about myself, and I would encourage all of you to get very serious about this and support our efforts. We are working very hard to get reversed on this. Reputed organizations of which I'm a member, like RSSDI, with Research for Diabetes in India, ACP, American College of Physicians, API, Association of Physicians of India, Diabetes India. There are many prestigious organizations run by stalwarts in our country, and they are doing extremely well. And they're working very hard, and they're doing a lot of health checkup camps. They're doing a lot of educational workups. We are also doing that. A lot of work is being done by Detect Diabetes and Technology. We had a fantastic conference in Jaipur just last month, and a lot of work is being going on. And I sincerely hope that this work percolates down to the common man who understands the rationale of this work and gets encouraged and takes preventive measures, because diabetes in a big way, especially pre-diabetes, what we nowadays call as early diabetes, is highly preventable. Right. And if people are very serious and they follow the right guidelines, they don't go for instant coffee kind of treatment, and they don't go for, they don't get discouraged, or they don't feel upset if they are not able to achieve their goals. So if those things are taken care of, and since you're touching the topic, I would like to highlight something very important today. Today, obesity is linked to diabetes in a big way. Yeah. So obesity and diabetes are like husband and wife. They stay together and one leads to the other. And obesity today is a big, big malady. And it's such a big malady that it is leading to diabetes that we call it diabesity today. Yeah. Because obesity is responsible. And the concept so far was obesity is like something, it's a bad thing, it's a figure problem, and people would not take it seriously. Today, medical science is giving obesity a very definitive position. It is labeled it as a disease. It is as important a disease like a heart attack. It is as important a disease like type 2 diabetes. It is as important a disease like hypertension or blood pressure. And it has to be aggressively treated, not just with lifestyle, with even medicines, which have now sort of become mandatory by various guidelines. And I'm telling you out of our own experience and through a lot of medical research that if you're able to reduce your weight by 5% to 10% to 15%, a lot of diabetes can be reversed. That dream, the word dream, the planet dream, that can diabetes be reversed? It is reversible if you lose significant amount of weight. Blood pressure can be reduced. We just ran a huge camp through RSSDI on World Hypertension Day, and we did a lot of work on hypertension. Blood pressure can be reduced, a lot of medicines can be reduced. In fact, the total prescription can be reduced very significantly if you can get rid of your weight. And there are many verticals on it. You need to exercise, you need to eat healthy food, you need to have a very... You need to have a holistic approach. Absolutely, for which you have done phenomenal work, and I really recognize your work, and I really appreciate the efforts that you're taking. And besides writing prescriptions and medicines that we are professionals in, you people are doing a lot of work outside the prescription, because that is very important, controlling lifestyle and getting patients to understand that a healthy life could be a sweet life. Yeah. And you can get rid of the sweet disease. It doesn't mean you can't eat sweets. You can eat sweets if you have a very healthy lifestyle, which is not unpleasant or unsweet, which is very sweet to adopt if you do it in the right manner. Yeah. And thanks to you, you are doing a phenomenal work in that area. So before we start our questions round, I would like to request, because this is a very common subject which we want to, answer today. So we will be speaking in Hindi also today. So the first question. So बहुत public को अभी तक ये ही नहीं पता है कि डिफरेंस क्या है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में. अगर हम लोग वहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, टाइप 1 डायबिटीज क्या है और टाइप 2 डायबिटीज क्या है. बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, एंड मैं हिंदी में कोशिश करूंगा बताने की. टाइप 1 डायबिटीज को हम बोलते हैं IDDM और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. टाइप 2 को हम बोलते हैं NIDDM और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. बेसिक प्रॉब्लम बहुत सिंपल है.
ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्लूकोज बॉडी में कैसे हैंडल होता है। तो मैं एकदम बेसिक्स में बताता हूँ। देखिए, पहले हम खाना खाते हैं, खाने में हमें ग्लूकोज मिलता है, राइट। खाने में 3 पार्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं, जैसे एक बिल्डिंग का, एक गाड़ी का एग्जांपल लेता हूँ। गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, जो गाड़ी बनती है, वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेटल लगता है। तो हमारी बॉडी को, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आपके नाक, कान, बॉडी, बोन्स, जो बनाने के लिए जो सबसे लगता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन्स। ठीक है। उनके बीच में जो एक कुशनिंग होता है, उनको जोड़ के रखता है, उनको एडिसिव जो देता है, एक तरीके से, मैं बहुत सिंपल तरीके में बता रहा हूँ, वो होता है फैट्स। एंड फैट्स इज अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स इज सेकंड फ्यूल। जैसे आप हाइब्रिड गाड़ी आती है ना, गैस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल या डीजल पे चलती है, तो सेकंड सोर्स ऑफ फ्यूल और एनर्जी इज फैट। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी दौड़ती है रोड पे, आप पेट्रोल बोलो, डीजल बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, जो बेसिक फ्यूल है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाने में खाते हैं, ये अल्टीमेटली इसका जो बेसिक फंडामेंटल मॉलिक्यूल है, सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो बॉडी में खाली और खाली ग्लूकोज रहता है, जो बर्न किया जाता है। जैसे आपके कार्बोरेटर या ऑल्टरनेटर में पेट्रोल और हवा को बर्न किया जाता है और फिर एनर्जी पैदा होती है, जैसे इंजन का चक्का घूमता है। तो इसको जब बर्न किया जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है, जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप बात कर पा रही हैं, लोग हमें सुन पा रहे हैं, लोग काम कर पा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, तो क्या होता है, जब आप गाड़ी लेके चलते हो तो आप पूरी टंकी भरा के फिर चलते हो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से यहाँ जर्नी करी, फिर आपने वापस पेट्रोल भराया, फिर आपने जर्नी करी, फिर भराया। तो आप टंकी आधी या पूरी भर के फिर चलते हो। तो जब हम खाना खाते हैं, हम 8 से 6 घंटे का फ्यूल बॉडी ले लेती है। तो ये जो फ्यूल आता है, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज का जब आप बहुत सारा जोड़ोगे तो स्टार्च बनता है, जो बाहर की जो प्लांट्स और वेजिटेबल्स वगैरह में या राइस में या चपाती है, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स में रहता है, बॉडी इसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाती है, जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। फिर उसको वापस जब वो जोड़ते हैं, तो जो सेकेंड काइंड ऑफ स्टार्च बनता है बॉडी का, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। वो ग्लाइकोजन हमारे मसल्स, प्रोटीन्स, किडनी से स्टोर हाउसेस में स्टोर किया जाता है। तो जो ये ग्लूकोज है, उसको मसल्स और लिवर में घुसाने का जो काम है ना, वो इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन इज लाइक अ की, जो वो सेल्स पे जो ताला रहता है ना, लिवर वगैरह को ताला खोलता है और वो ग्लूकोज के अंदर घुसाता है। तो यदि इंसुलिन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, स्टोरेज में ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, तो आपके ब्लड का ग्लूकोज बढ़ेगा। तो जब आप लैब में चेक करोगे, आपका यदि नॉर्मल ग्लूकोज शुड बी लेस देन 110 मिलीग्राम्स पर डीएल और पर 100 सीसी ऑफ ब्लड, तो उससे ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वो ग्लूकोज खींचा नहीं जा सकता है। तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है। तो ये 2 कारण से होती है, या तो इंसुलिन नहीं होगा बॉडी में पैदा, या इंसुलिन पैदा होता है लेकिन काम नहीं कर पाता है। तो जब वो पैदा नहीं होता है, उसे बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, और इंसुलिन डेफिशिएंट डायबिटीज मेलाइटिस, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और जब इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में रहता है लेकिन काम कर नहीं पाता है, तो बॉडी उसको ओवर टेक करने के लिए और ज्यादा इंसुलिन पैदा करती है, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसको हम सादा भाषा में समझाएंगे तो, आपकी चाबी नहीं है तो आप ताला कहां से खोलोगे, लेकिन चाबी है लेकिन ताले में फिट नहीं हो रही है। तो आप कई प्रकार की चाबियां लगाते हो ना, तो जब आप मल्टीपल चाबियां लगाते हो तो उसे बोलते हैं टाइप 2। जब चाबी नहीं है तो उसे बोलते हैं टाइप 1। तो सिंपल सोल्यूशन है, टाइप 1 में आपके पास कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट टू गिव इंसुलिन। कोई दवा काम नहीं करती है, यू हैव टू एंड हैव टू एंड हैव टू गिव इंसुलिन, एंड दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट। टाइप 2 में वी कैन कट डाउन दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्यू टू मेनी मेडिसिन्स, वी आर एबल टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा इंसुलिन एंड कट डाउन रेजिस्टेंस। तो हर टाइप 2 पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, गोलियों से भी कंट्रोल में होता है। मैंने बहुत सिंपल तरीके में बताया, इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। सर, सेकेंड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, जैसे कि आज का टॉपिक ही है टाइप 2 डायबिटीज, तो टाइप 2 डायबिटीज का जनरली कॉजेस क्या होता है, कब ये डायग्नोस होता है, और इससे रिलेटेड बाकी रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई लोग हमें पूछते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि सर आपको या मैडम आपको डायबिटीज हो गई है, तो उन्हें नेचुरली दुख तो होता है, खुशी नहीं होती। तो हमें पता ही नहीं था ऐसे कैसे हो गए। तो ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, तो मैं इसका भी आपको उत्तर देता हूँ। पहली बात हमें ये समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि टाइप 1 डायबिटीज जनरली बर्थ से होती है, बट कई टाइप 1 हमें ना लेट एज में पिकअप होते हैं, बचपन में पिकअप नहीं हो पाते हैं। एंड टाइप 2 डायबिटीज 40 या 50 के बाद ही होती है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मेनी टाइप 2 डायबिटीज प्रेजेंट एट एन अर्ली एज, इवन एट द एज ऑफ 15 एंड 20 इयर्स, एंड वो मिस हो जाते हैं, दे गेट लेबल्ड एज टाइप 1। सो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट आते हैं, जिसपे मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट वी कैन ऑफिशियली डिफरेंशिएट कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है, बिकॉज मैनेजमेंट पूरा चेंज होता है।
Now coming to your question कि ये क्यों होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर Cure. and needle and time saves 9, राइट? तो एक बहुत जरूरी चीज है. तो how do you why do you get type 2 diabetes? Now there is always a genetic component. So see, it is multifactorial. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जो हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज तो मुझे होने ही वाली है, ऐसा नहीं है. Right. तो सपोज एक पेरेंट को हो तो चांसेस इतने हैं, 2 पेरेंट्स को तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यदि दोनों पेरेंट्स को नहीं हो तो भी 20% चांसेस हाई रहते हैं टाइप 2 होने में. एंड जो काफी सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये जानना बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को डायबिटीज होने के बावजूद भी बच्चों को कभी कभी नहीं होती है. इट इज टोटली ऑन योर लाइफस्टाइल. करेक्ट. नाउ सिंपल फॉर्मूला है ओबेसिटी और डायबिटीज में, आप ज्यादा खाओगे और कम खर्चा करोगे तो इम्बैलेंस होगा. करेक्ट. तो अब मैं इसको लोगों को क्या समझाता हूँ, आप बहुत सारा कमाते हो लेकिन आप टैक्स नहीं भरते हो, क्या होता है? करेक्ट. ब्लैक मनी जमा होती है, आपके घर पे रेड पड़ती है, आप दुखी हो जाते हो. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कमाना नहीं चाहिए, आपने कमाना चाहिए लेकिन खर्च भी करना चाहिए. एनर्जी एक्सपेंडिचर उतना होना चाहिए. करेक्ट. तो आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, लेकिन आप बर्न नहीं करते. दैट इज अ प्राइमरी रीजन. प्राइमरी रीजन इज नॉट वी आर नॉट ईटिंग हेल्दी फूड. यस, हम लोग हेल्दी फूड नहीं खाते, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज वी आर नॉट बर्निंग फूड. हाउ डू वी बर्न फूड? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. आप जितनी ज्यादा कैलोरी खर्च करोगे वो अच्छा है. मैं आपको अगेन एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज मेरी इनकम बहुत अच्छी है और मैंने सारे पैसे एक पर्टिकुलर शेयर मार्केट में लगा दिए और वो शेयर डूब गया, तो क्या हालत होगी मेरी? तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मल्टीपल प्लेसेस में इन्वेस्ट करता है. करेक्ट. तो हम क्या करते हैं, कई पेशेंट्स को देखते हैं, सुबह सुबह वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, घर से एलिवेटर लेते हैं, नीचे उतरते, गैरेज से गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी जिम के बाद पार्क करते हैं, 2 घंटा जिम में बहुत सारा पसीना बहाते हैं, वापस गाड़ी में बैठते हैं, लिफ्ट चढ़ के घर पे आते हैं, टीवी ऑन करते हैं, पेप्सी लेते हैं, फ्राइड पोटैटोज वगैरह लेते हैं, वेफर्स लेते हैं और बर्नआउट को एकदम रिलैक्स करते हैं कि मैंने बहुत पसीना बहाया, एंड पूरे दिन लैपटॉप पे या मोबाइल पे काम करते हैं. करेक्ट. दिस लाइफस्टाइल डज नॉट हेल्प यू. करेक्ट. करेक्ट. This is a standard lifestyle that I see. Yeah. And one of the reasons आज type 2 diabetes इतनी बढ़ गई है because आप मैं जो हमारी शूटिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया 90% ऑफ द टाइम हमारा लैपटॉप कर रहा है, हमारा कंप्यूटर कर रहा है, हमारा मोबाइल कर रहा है. करेक्ट. कार के लोन्स बहुत इजीली मिल रहे हैं, बाइक के लोन्स बहुत इजीली मिल रहे हैं. एक जमाने में एक सिस्टम होता था, एक बस होती थी जिसकी टिकट नहीं लगती थी और हम सब यूज करते थे. जब मैं भी स्टूडेंट था, दैट वाज कॉल्ड, हम लोग प्यार से उसको बोलते थे 11 नंबर की 11 नंबर की बस. मतलब yes, चलना. हम कहाँ चलते हैं? आजकल हर आदमी को तो बाइक मिल जाती है, हम चलते ही किधर है? हम चलना भूल गए. हम हमारी फैमिली के साथ हाथ से हाथ पकड़ के चलना भूल गए. आजकल चलना भी एक्सरसाइज है. आजकल लोग चलाने के लिए पैसे कमाते हैं. आजकल लोगों ने प्रोफेशन बना दिया, वो आपको चलाते हैं और आप उनको पैसे देते हो. आजकल की दुनिया कैसे चल रही है. सो इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीज. तो आप क्या करते हो, आप ऐसा खाना खाते हो जो कैलोरी डेंस होता है. आप कम खाते हो लेकिन कैलोरी डेंसिटी बहुत हाई होती है. और कुछ खाने होते हैं जिनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा रहती है लेकिन डेंस नहीं होते. सो पर ग्राम ऑफ फूड आप कैलोरीज कम खाओगे या कार्बोहाइड्रेट्स कम लोगे, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स. लोअर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, healthier the food. More the glycemic index, unhealthier the food. And then how you exercise. Though it is very important to understand one thing. Do not exercise beyond your capacity and strain your heart and your organs. आप देख रहे होंगे आजकल कितने लोग मैराथन के लिए जा रहे हैं, जिम्स में जा रहे हैं, और आपने पढ़ा होगा many celebrities and reputed people have died in the gym and marathons because ये लोग unaccustomed exercise कर रहे हैं. Correct. And it is very important कि हम 2.5 घंटा सुबह करें. I'm not discouraging, बहुत अच्छी बात है. Don't you think it is better कि हम थोड़ा थोड़ा दिन भर करें? Correct. आज आप ये देख इधर काम कर रहे हो, आपको मैं बोलूं भैया 10 फाइल 1 घंटे में निकाल के दो, आपके ऊपर बहुत स्ट्रेन आएगा. जब मैं बोलूँ 10 फाइल, आप बच्चों को आप बोलो भैया कल तेरा एग्जाम है तो पूरे साल का कोर्स अभी पढ़ ले, नहीं हो पाता है. लेकिन पूरे साल आप पढ़ाई करोगे तो प्रेशर नहीं पड़ता. Right. So when you're talking about this, I can relate to it so well. When I see patients, I always tell them there are 2 types of energy expenditure: eat and eat. So exercise activity thermogenesis and non-exercise activity thermogenesis, and they both are equally important. Most of the times you feel कि आपको 1 घंटा निकाल के workout करना है, but over a period of time, if you are not working on intensity, volume, and frequency of that, so it gets stagnant and you don't get a lot of benefit out of it. So non-exercise activity is overshadowed, but I think that is also very very important for fat burning and a good lifestyle. No, I'll tell you what. So there are a couple of things here. मैं थोड़ा time लूँगा. This is a very important topic. Yeah. Burning fat and burning calorie is very important. Like very rightly said,
We can burn a lot of calories when we are sort of doing treadmill or we are running or we are swimming. Right. But we should burn more fat when we are not doing these activities. Exactly. We are sedentary. Exactly. When that is possible, see, that is possible if you have a lot of muscle mass. If your muscles are highly toned and developed, they keep burning calories throughout the day. And that burning is a huge amount. If your muscle mass is not there, you won't burn. So first important thing is to develop muscle mass. जब हम aerobics करते हैं, जब हम डांस करते हैं, जब हम भागते हैं, जब हम दौड़ते हैं, we are not developing muscle mass. No. We are burning calories. And what is the advantage? We are strengthening our heart. Yeah. These are cardiac exercises. If you do it gradedly, you will make your heart very strong. So they're very good. Yeah. But what is more important today by medical literature is muscle building exercises, जिसके लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ता, which is resistance and strength training, which is very important. Absolutely. तो जैसे आप planks करते हो या जब आप बहुत graded तरीके से weights उठाते हो, yeah, these are some exercises जहाँ पे आपको ना वजन उठाना is one part of it. These are called as isotonic and isometric exercises. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, बट द बॉटम लाइन है दीज आर मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस. तो इफ यू डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जैसे कि आप वो रेजिस्टेंट बैंड्स के अगेंस्ट में करते हो, या बहुत ही ग्रेडेड धीरे धीरे वेट्स उठाते हो, या सिंपल चीजें जैसे आप हाथ को पीछे रख के ऐसे घुमा के यू कीप इट बेंड अंडर सम प्रेशर एंड यू डू दैट व्हेन यू आर डूइंग प्लैंक्स. वेरी सिंपल एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू, आई एम नॉट गिविंग अ लेक्चर ऑन दिस. जब आप ये सब करते हो तो बिल्डिंग अप योर मसल मास. मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस डू नॉट डेवलप गिव रिजल्ट्स ओवरनाइट. दे टेक months and months to develop. And यहाँ पे एक important concept है जो लोगों को समझना चाहिए, that is typical in the Indians. We need to understand that Asians and especially Indians, हमारा genetic structure ऐसा है और हमारा खाना ऐसा है कि we are prone to develop diabetes. We are prone to develop heart attacks. Our coronary arteries are narrow compared to the Caucasians in the Western world. Our food is richer by carbohydrates. We are eating around 60% carbs in our diet, whereas Westerners, Caucasians are eating only hardly 15 to 20% carbs. The rest is protein. So our basic diet is defective. Our basic genes are defective compared to the Westerners, and we are designed to develop more incidences of diabetes. तो भी हमारे forefathers को नहीं थी, आज हमें क्यों है? That is called, another thing that we should understand is called as a thin fat Indian or the YY paradox. It means कि जो आपको मोटा दिखता है वो वाकई में अनहेल्दी होता है, ऐसा नहीं है, और जो पतला दिखता है वो हेल्दी होता है, ऐसा भी नहीं है. There are a lot of thin people who are loaded with fat but less muscle, and there are a lot of so-called heavy people. They are loaded with muscle but very thin visceral fat, जो fat body के अंदर होता है. So they are very healthy and they are less chances of developing diabetes and heart problems and all. So it is, BMI is a concept that I would like to introduce, which means BMI is a ratio of your weight and height. Right? So it's a very good concept. Today the criteria have been lowered. So if your BMI should be around 22 to 23, पहले हम 24 बोलते थे cut off. यदि उसके नीचे है तो you are healthy. But this concept is not acceptable by a complete standard. Because people with low BMI could be unhealthy, and people with little higher BMI could be healthy. That is called metabolically healthy obese people, MHO. So what is important at the bottom of the thing is not only your weight, but your muscle mass. तो आपका muscle mass जितना ज़्यादा है, your chances of developing diabetes and complications is very less. And you may be having normal or below normal BMI, but if your muscle mass is very less, you're as good as a thick fat person who's loaded with fat and a higher weight person. So that is an important concept to understand. So solution is very simple. Eat healthy, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो हम डिस्कस करेंगे, एंड एक्सरसाइज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, which is more of resistance training and aerobics, but done throughout the day. Correct. So again, I was able to, relate with this so well, because most of the times when I see my patients, if the patient is little, fat, he'll come and say, I want to lose 10 kgs in 3 months. That's a standard dialogue we hear. And अगर पतला इंसान है तो बोलेगा मुझे weight gain करना है, but none of them are aware कि उनका fat percentage कितना है. And we tell them that, your diabetes or any other lifestyle disorder is because of the fat, not because of your weight. Even a thin person can get diabetes. Even a fat person cannot get diabetes. So coming to my next question. Type 2 में मेडिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? आपको क्या लगता है किस स्टेज पे आपको लगता है कि अब इंसुलिन इंट्रोड्यूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है? मैडम बहुत बड़ा क्वेश्चन है.
दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ओवर वन एंटायर वीक. हम लोग इस पे कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, Right. इट्स रन ओवर प्रॉब्ली 3 दिन हम इसी पे बात करते हैं. Right. सबसे बड़ी बात ये कि जो भी पेशेंट आता है पहले ही बोलता है डॉक्टर साहब जितनी दवाइयाँ कम लिखोगे उतने अच्छे डॉक्टर, Exactly. नहीं लिखोगे तो और भी अच्छे, और इंसुलिन लिखे तो मैं डॉक्टर अभी चेंज कर दूंगा. स्टैंडर्ड जो हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मैं थोड़ा मिथ्स क्लियर करता हूँ. शुगर कम करना ब्लड में या डायबिटीज को कंट्रोल करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. कई पेशेंट्स हैं जो स्पेशलिस्ट तक भी नहीं जाते हैं, फैमिली डॉक्टर के पास रहते हैं. Right. कई पेशेंट्स हैं जो बहुत सारे नॉन एलोपैथिक इलाज करते हैं, जड़ी बूटी खाते हैं और शुगर कम हो जाता है. मैं एक सिंपल सा चीज बताना चाहता हूँ. मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल हमारे पेशेंट्स को देता हूँ जिसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जब हम एक स्त्री से और एक पुरुष से शादी करते हैं तो क्या हम एक लेडी से या जेंट से शादी करते हैं कि हम एक परिवार से शादी करते हैं. तो जब हम शादी करते हैं, हम पूरे परिवार से शादी करते हैं. तो शादी को यदि सुखी रखना है तो खाली वाइफ और हस्बैंड को खुश रखना काफी नहीं है, अपने सास ससुर का भी ख्याल रखना पड़ता है, Right. उनके भाई बहनों का भी ख्याल रखना पड़ता है. बिकॉज जब आप शादी करते हो आप एक परिवार से शादी कर रहे हैं, Correct. और जब तक आप उस परिवार को अपनाओगे नहीं आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं होगी. आई थिंक बीइंग अ लेडी यू कैन एग्री एंड अंडरस्टैंड दिस. 100%. डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज ऑफ शुगर, इट इज अ फैमिली ऑफ डिसीजेस. Yeah. राइट. तो So जैसे मेरी पत्नी है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा साला, मेरे जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा फोकस मेरी वाइफ पे वाइफ रहता पे है. रहता है. तो हमारा ट्रीटमेंट शुगर पे रहता है, सही बात है. लेकिन डायबिटीज की फैमिली में हार्ट अटैक आता है, किडनी फेलियर आता है, आई डैमेज आता है, नर्व डैमेज आते हैं ना, हाथों में मुंगिया आती है, इंटेस्टाइन डैमेज आता है, स्किन प्रॉब्लम्स रहती है, इन्फेक्शंस रहती है, कितनी चीजें रहती हैं. Correct. उनको कौन संभालेगा. तो आपका शुगर कम करने से ये चीजें कंट्रोल में आती हैं लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होती. तो जैसे हम हमारे स्पाउस को, वाइफ या हस्बैंड को गिफ्ट देते हैं, कुछ ना कुछ इनाम लाके देते हैं, कुछ ना कुछ Yeah. गिफ्ट्स पकड़ाते, लेकिन हम Recognize उनके करते फैमिली मेंबर्स को नहीं रिकॉग्नाइज करते, करते हैं. तो आप समझ सकते हो कि शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं होगी. सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज यू हैव टू फोकस ऑन हिज हार्ट, on his kidney, on his eyes, and certain medicines are given. बिकॉज आपको डायबिटीज है, ये ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज होते ही है. तो इनको कंट्रोल में करने में इसका असली, जैसे आप इन्वेस्ट करते हो तब आप जो पैसे लगाओगे आप सेविंग्स अकाउंट में डाल सकते हो एट अ 3 और 4% का रेट होगा. आई थिंक डॉक्टर्स को पैसे की ज्यादा नॉलेज नहीं होती. या आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे या शेयर में लगाओगे, you'll get a better interest rate, आपका पैसा डबल होगा. तो you will invest wisely. Yeah. So similarly we have to give medicines and take the treatment of a patient in such a holistic manner कि मेरा पेशेंट 10 साल के बाद डायलिसिस के लिए नहीं जाए, मेरे पेशेंट को 15 साल के बाद हार्ट अटैक नहीं हो, पैरालिसिस नहीं हो, ब्रेन की वेसल्स ब्लॉक नहीं हो. जब हमारा ट्रीटमेंट वैसे फोकस रहेगा तब हम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर रहे हैं. यदि हम खाली शुगर कर रहे हैं तो हम थोड़ा इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं. Correct. तो मेनी मेडिसिन आर गिवन, लाइक SGLT2 इनहिबिटर्स करके एक क्लास ऑफ मेडिसिन है, GLP अगोनिस्ट करके एक क्लास ऑफ मेडिसिन है. दे आर वेरी गुड मेडिसिन. ACE इनहिबिटर्स करके या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स करके क्लास ऑफ मेडिसिन है. दीज आर द मेडिसिन व्हिच टेक केयर ऑफ योर किडनी, योर हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स. तो इवन इफ यू कैन कंट्रोल योर शुगर by, let us say, non-allopathic means, these medicines are mandatory. Today, most of the leading doctors, as per guidelines, because we practice evidence-based medicine as per medical research, Yeah. these medicines are now mandatory. The current ACE guidelines और the ADA guidelines, American Diabetes Association और RSSDI guidelines जो हमारी इंडिया की guidelines है, या जी current ACE guidelines, तो ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, है वेरी मेकिंग इट वेरी मैंडेटरी. यू मस्ट स्टार्ट अ GLP और एन SGLT2 इनहिबिटर ऑन योर पेशेंट even if his diabetes and sugars are in a well control, because our focus is to keep his heart, his kidney, his eyes healthy after 15 years and not just take care of sugars. So that is one part. So when your doctor is writing your prescription with medicine, he's taking care of all this. And to control blood sugar, there are different classes of medicines like sulfonylureas, you have got glitazones like pioglitazone and all. You've got metformin, the age old and very well accepted and the most wonderful medicine. So these are different medicines that we write. Now coming to the most important part of your question, which is insulin. मैं मेरे patients को एक ही बात बोलता हूँ, और ये जवाब के बाद जो देखने वाली audience है, many of them will turn against me because लोगों को insulin नाम सुनना पसंद नहीं है. Right. But insulin, एक बात याद रखिएगा, आपके जिन family members और friends को diabetes नहीं है, उनकी बॉडी में क्या पैदा हो रहा है? इंसुलिन. सो इंसुलिन इज नेचर्स मॉलिक्यूल. तो आप लोग इंसुलिन से क्यों डरते हैं?
वाई डू यू थिंक इंसुलिन इज बैड? एक हमने ना इंसुलिन का नाम खराब करके रखा है। कई लोग ऐसा फीलिंग लेके आते कि जब लास्ट स्टेज में रहेंगे तब इंसुलिन दी जाती है, या मैं मरने वाला हूँ तो इंसुलिन दी जाती है, या इंसुलिन लेने के बाद डेथ हो जाएगी, या इंसुलिन लेने के बाद मेरी मुझे लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो गलत है। ऐसे इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज यदि आप याद करोगे क्यों होता है, बिकॉज बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ओवरकम दैट योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ इंसुलिन। तो सपोज यू गेट अ पेशेंट जिनको अभी अभी डायबिटीज लगी हो, बहुत ही बेसिक एकदम मतलब सिंपल अर्ली डायबिटीज हो, इफ यू कैन स्टार्ट इंसुलिन एट दैट स्टेज, तो पैनक्रियास का जो इंसुलिन प्रोडक्शन है दैट कैन बी रिड्यूस्ड, सो हिज पैनक्रियास विल रन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो अर्ली इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन इज वेरी गुड एंड एडवाइजेबल बिकॉज इट कीप्स योर पैनक्रियास हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसको हम बोलते हैं कि जो थका हुआ घोड़ा है उसको ना व्हिप मार मार के और मत भगाओ। So, because eventually type 2 diabetes gets converted to type 1 because your pancreas can't produce insulin, so he has to go on insulin. So, it is always recommended to start insulin early, but there are two schools of thought. Some people feel insulin नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, but insulin देने से हार्ट को कुछ बेनिफिट या और ऑर्गन्स को बेनिफिट नहीं मिलती, जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स या GLP अगोनिस्ट देते हैं, बट अर्ली इंसुलिन गिव्स रेस्ट टू द पेनक्रियास। एंड इंसुलिन लेने में कोई डरने की बात नहीं है, ना वो नुकसान करती है ना वो तकलीफ देती है। आजकल आप अपना इंसुलिन खुद लगा सकते हो, आपको नर्स या डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। और इंसुलिन के दो प्राइमरी साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेट गेन होता है और हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर्स बहुत लो होते हैं। विथ मॉडर्न इंसुलिन दीज प्रॉब्लम्स आर हाईली रिड्यूस्ड। एंड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो पेशेंट, जैसे कोई पायलट है या कोई डॉक्टर है या लॉयर्स है या आईटी वाले हैं जो यूएस के लिए काम कर रहे, तो रात को ऑनलाइन काम करते हैं, दिन में सोते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, यू नो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास ऑफ पीपल हु आर ऑन द रोड फॉर 7 days, या जो लोकोमोटिव ड्राइवर्स है जो 8-8 दिन तक गुड्स की ट्रेन्स चला रहे हैं, उनके लिए इंसुलिन का आप क्या बोलोगे, बिकॉज वो आप फ्रिज में नहीं रख सकते। मॉडर्न इंसुलिन कैन बी केप्ट आउटसाइड द फ्रिज फॉर 7 to 8 days, दे कैन बी पुट इन योर पॉकेट एंड यू कैन गो विथ इट। एंड इवन इफ यू आर नॉट ईटिंग फूड ऑन टाइम एंड यू आर टेकिंग इंसुलिन एट अ लेटर टाइम, इट इज येट पॉसिबल एंड यू विल नॉट गेट हाइपोग्लाइसेमिया। मॉडर्न इंसुलिन आर सो गुड, आप कौन सा इंसुलिन ले रहे हो लेट योर डॉक्टर डिसाइड, और आप सही तरीके में लोगे तो वो इंसुलिन बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है और नुकसान नहीं करता है, और साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, एज गुड एज नहीं होते हैं। लेकिन आई थिंक बहुत सिंपल सी बात है, घर में खाना यदि आपकी पत्नी बना रही हो, लेट हर मेक द फूड, डोंट इंटरफेयर, गिव सजेशंस बट डोंट कुक फूड विथ हर। एंड इफ यू आर द हस्बैंड हु इज मेकिंग फूड and your wife is not making, let him make the food. I'm being very impartial to both the genders. I don't want to side one gender. So I would again suggest to my patients, let your doctor take a call. Don't interfere with his prescription. He knows what is best for you. Go to a good doctor, and if he decides to give you insulin, of course you have a right. It is your body. You can refuse to take. That is your right. Nobody should force their treatment on the patient. But maybe the doctor is looking at the broader side of it. Please cooperate and understand a doctor's perspective. वो आपका भला चाहता है, और यदि वो आपके लिए इंसुलिन डिसाइड करता है, I would suggest listen to him because it will help you in the long run. Certain conditions like kidney failure, heart failure, if you have got pregnancy, gestational induced diabetes, pregnancy induced diabetes, after transplant, there are many conditions where insulin becomes mandatory. You can't give tablets. It is not possible. Pancreatitis, pancreas में swelling हो तो you can't give tablets. There are certain GLPs and all agonists you can't give in pancreatic condition. Certain cancers you can't give tablets. So there are many conditions जहाँ पे insulin mandatory हो जाता है. There are many conditions जहाँ पे insulin mandatory नहीं होता है. But in most of the conditions insulin is very safe. It is very nice. And दो myths मैं clear करना चाहूँगा. कैमल के दूध में इंसुलिन नहीं होता है, पीने वाला इंसुलिन आज तक पैदा नहीं हुआ है, तो डोंट गो फॉर दोस फॉल्स एड्स। एंड इन आजकल ऐसे इंसुलिन आगे जो हम नाक में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे अस्थमा वाले को, इट इज येट इन द पाइपलाइन, रिसर्च इज गोइंग ऑन, इट इज अवेलेबल टुडे, बट वी आर नॉट श्योर उसका बायोअवेलेबिलिटी कितना है, बॉडी को एक्चुअली कितना इंसुलिन आप दे रहे हो और बॉडी को कितना मिलता है। सो इट इज अ गुड इंसुलिन बट इट इज येट रिसर्च इज गोइंग ऑन। द बेस्ट इंसुलिन टुडे इज व्हाट यू गिव बाय इंजेक्शन। एंड an important point which I'm not covering, it's a big topic. Never give insulin on one side, rotate your sides, change the needle, and there are many other things जो आपको इंसुलिन के बारे में जानना चाहिए जो मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ। How to store insulin, we can cover it some other time. But आप सही तरीके में इंसुलिन लोगे। I have my own patients who are 20 to 30 years on insulin. We have a lot of patients who are taking insulin for 30 to 35 years, and trust me, they're doing very well and they're very happy. So please do not get a
a student of WhatsApp University and Google Baba and get sidetracked. Please listen to authoritative sources. Right. Like I tell my patient, आप कितना टैक्स भरोगे आपका CA डिसाइड करेगा कि आपका नेबर डिसाइड करेगा. Correct. Let your doctor take a call. You don't take a call, but yes, please have a very frank and open discussion with your doctor and treat him like a tree. Don't take decisions unilaterally. Let your doctor also participate and you also participate and then come to a conclusion. Right. It has to be a mutual decision. Correct.